Good evening, students. Welcome back. Day 2 of the chapter Bricks, Beads and Bones. In the last class, I have given you an explanation about the topic and some of the questions that might come in the competitive examinations. Now, we're moving forward with the next topic, which is the beginnings. On the blackboard, you can clearly see some of the very important questions which I've already written right here. So in meanwhile, while I'm trying to explain this particular topic, I will be giving you or I will be dictating you those questions which you could clearly find right here on the blackboard. So you don't have to worry in case you are not able to, you're not right while I'm dictating. You can just properly note it down from the blackboard. We move on now. First, the beginnings. There were several archaeological cultures in the region prior to the mature Harappan. These cultures were associated with distinctive poetry, evidence of agriculture and pastoralism, and some crafts. So it says that there was a culture which before the mature Harappan culture. There was a culture before the mature Harappan culture, and that particular culture was known by a very distinctive type of poetry, pastoralism and agriculture. Settlements were generally small and there were virtually no large building. It appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization, evident from a large scale burning at some sites, as well as the abandonment of certain settlements. So it says that the settlements of the early Harappan before the mature Harappan were too small. But then how do we know that there was an early Harappan and a mature Harappan settlement? Because there is an evidence of large scale burning. A huge area was burned. For that, I have given you a question which says, state the evidence to prove a break between the early Harappan and the Harappan civilization. Here the question is, state the evidence to prove a break between the early Harappan and the Harappan civilization. Moving to the next topic, subsistence. If you look at the maps 1 and 2, you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan cultures. So it states that the mature Harappan culture came into existence the same place where the early Harappan cultures have existed. कहने का मतलब जहाँ पे शायद पहले सिटीज़ रही होंगी, छोटे छोटे जो है एरियाज रहे होंगे जो कवर करते रहे होंगे या छोटे छोटे सेटलमेंट्स होंगे, उन्हीं सेटलमेंट्स के ऊपर जो है बड़े और मैच्योर सेटलमेंट्स बनाए गए. मैच्योर सेटलमेंट्स मतलब डेवलप सेटलमेंट बनाए गए, मतलब मॉडर्न सेटलमेंट्स बनाए गए. आगे पढ़ते हैं. These cultures also shared certain common elements including subsistence strategies. और इनमें कुछ कॉमन जो है कल्चर भी था और कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो पहले से लगातार चली आ रही थी. बस उस स्ट्रैटेजीज को उन तरीकों को बस थोड़ा सा चेंज किया गया था, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो है इंसान जो है वो अपने आने वाले वक्त में जैसे जैसे समय गुजरता है वो अपनी पुरानी चीज़ों में ही कुछ नए चेंजेस करके उसको नया बना देता है. और वही हुआ जो पुराने सेटलमेंट्स थे. जो पुराने सेटलमेंट्स थे उन्हीं सेटलमेंट्स के ऊपर हम देखते हैं मैच्योर हरप्पन सेटलमेंट्स हुए. और ये भी देखा जाता है कि बड़ी संख्या में जो कुछ भी नए जो आपके हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी नए तरीके अपनाए गए वो तरीके पुराने तरीकों से निकाले गए थे. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. The Harappans ate a wide range of plants and animals products including fish. तो यहाँ पे उन्होंने फिश का नाम दे दिया है. तो याद रखिएगा कि हरप्पन्स फिश खाते थे. अगर उनमें आपको कहीं कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें लिखा जाए इनमें से कौन सी चीज़ नहीं खाई जाती थी और कहीं अगर वहाँ फिश दिया है तो आपने उसको टिक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा. तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना होगा कि फिश भी खाया जाता था हरप्पन सिविलाइजेशन में.
Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains and seeds. चार्ड ग्रेन, चार्ड का मतलब क्या होता है? CHARRED, चार्ड का मतलब क्या होता है? चार्ड का मतलब होता है जला हुआ। तो कहने का मतलब यहां पे ये कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता किया कि वो क्या खाते थे? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता ऐसे किया क्योंकि उन्हें जले हुए ग्रेन्स और सीड्स मिले। तो उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया था है, हाउ हैव आर्कियोलॉजिस्ट बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन कल्चर? ये देखिए दिया है क्वेश्चन, हाउ हैव आर्कियोलॉजिस्ट बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो आपका आंसर होना चाहिए कि कहता है फाइंडिंग्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीडिंग्स एट दीज साइट्स। इज इट क्लियर? चलते। These are studied by archaeobotanists who are specialists in ancient plants remains. आगे पढ़ते हैं। Grains found at Harappan sites include wheat, barley, lentil, chicken pea and sesame. Millets are found from sites in Gujarat. Finds of rice are relatively rare. तो यहां पे वो क्या कह रहा है? यहां पे कुछ ग्रेन्स के वो नाम बता रहा है। ग्रेन्स के नाम, ग्रेन्स के नाम है। नेम, तो मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है, नेम द ग्रेन्स ईटन बाय द हड़प्पन्स। तो कौन से ग्रेन थे? व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकन पी एंड सीसम। और उसके अलावा कहता है मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। उसको वो अलग से लिख रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है विच ग्रेन वॉज ओनली फाउंड इन गुजरात विच वॉज ईटन बाय द हड़प्पन पीपल? तो वो है मिलेट्स। फाइंड्स ऑफ राइस और रिलेटिव रेव, तो राइस तो नहीं मिला वहां पे। फिर आगे बढ़ते हैं। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। इस पे मैंने अब क्वेश्चन बना दिया है, नेम द एनिमल्स फेमिलियर टू हड़प्पन्स। ये देखिए, नेम द एनिमल्स फेमिलियर टू द हड़प्पन्स। आगे बढ़ते हैं। साइट्स studies done by archaeologists or zoo archaeologists indicate that these animals were domesticated. So these are the animals which were domesticated. Question ऐसा आ सकता है, name the animals which were domesticated by the Harappans. तो उसमें मैंने आपको आंसर दे दिया है उन्होंने, cattle, sheep, goat, buffalo and pig. तो याद रखिएगा pig भी है वहां पे, ठीक है। Bones of wild species such as boar, deer and घड़ियाल are also found. तो यहाँ पे वाइल्ड स्पीशीज के भी नाम हैं, तो उनके नाम क्या क्या है? बोर, डियर, घड़ियाल, ये तीन चीजें पाई गई हैं। उसके लिए भी क्वेश्चन दे दिया है हमने दिया है नेम द वाइल्ड एनिमल्स नोन टू द हड़प्पन्स। आगे बढ़ते हैं। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स और ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। यहां पे बोन्स ऑफ फिश भी पाए गए हैं और फाउल भी पाए गए। FOWL फर्स्ट कॉलम फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ये वर्ड आता है फाउल, FOWL, जिसका मतलब होता है अ बर्ड रेज्ड फॉर फूड, एक ऐसे पंछी को पालना जो कि आगे खाने के काम आए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, उसके ऊपर मैंने यहाँ कई क्वेश्चन दे रखे हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो यहाँ पे फिर से पहले मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए वही क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट किया जो बर्ड वाली मैंने आपको बात करी है। नेम द बर्ड रेज्ड फॉर फूड बाय द हड़प्पन्स। तो मैंने आपको बताया था उस बर्ड का नाम क्या? फाउल, FOWL, फाउल। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains, it is more difficult to reconstruct actual agriculture practices. देखिए ग्रेन्स के बारे में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पता नहीं चल रहा है। Were seeds broadcast, scattered और on plugged lands? क्या सीड्स को ऐसे फेंका जाता था? सवाल यहां पे पूछा जाता है। फिर कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट
extrapolate from this that the oxen were used for plugging. तो एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या हो रहा है? एक्स्ट्रापोलेट का मतलब हो रहा है टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में हम कोई ओपिनियन बना ले। तो ये कहता है कि लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने रिप्रेजेंटेशन देखा बुल का, किसमें? सील और टेराकोटा स्कल्पचर्स में, और ये मान लिया कि वहां पे बुल लोगों को पता था, और ये भी माना दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लगिंग, कि उसका इस्तेमाल प्लगिंग के लिए किया जा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। Moreover, terracotta models of plug have been found at sites in चोलिस्तान and at बानावाली हरियाणा। वो कहता है प्लग, जो प्लग का इस्तेमाल हो रहा है, उस प्लग के मॉडल्स पाए गए, टेराकोटा मॉडल पाए गए, कहां पे पाए गए हैं? चोलिस्तान में और बानावाली हरियाणा में। तो हमने उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था, ये है विच साइट्स गिव एविडेंस ऑफ द मॉडल्स ऑफ टेराकोटा प्लग। तो आपको पता होना चाहिए वो साइट्स हड़प्पा के हैं, चोलिस्तान एंड बानावाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड एट कालीबंगल, राजस्थान। तो खुदी हुई जमीन भी पाई गई है, उसका भी सबूत मिला है हमें। कहां से मिला है? कालीबंगल, राजस्थान से मिला है। उसके ऊपर क्वेश्चन बना है, विच साइट गिव एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड एसोसिएटेड विथ अर्ली हड़प्पन लेवल्स, अर्ली हड़प्पन लेवल्स से। तो वो कहां पे है? हमने देखा कालीबंगल, राजस्थान। द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो वो जो सेट थे वो राइट एंगल में थे, एक दूसरे के राइट एंगल क्रॉस में थे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक जगह पे दूसरी फसल हो रही है और दूसरी जगह पे, उसी फील्ड पे, उसी जगह पे, दूसरी जगह पे जो है साइड पे एक और फसल हो रही है। तो कहता है द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स to each other, suggesting that 2 different crops were grown together। तो ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्या बताइए, क्या यही इसका रीजन था? तो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। Did the Harappans use stone blades set in wooden handles or did they use metal tools? तो यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि उन्होंने क्या वुडन टूल्स का इस्तेमाल किया या मेटल टूल्स का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते देखते क्या कहता है वो। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स, आधा सूखा, अध सूखा एरिया, जहां पे ज्यादा सूखा नहीं पड़ता, उन एरियाज में वे इरिगेशन वाज प्रॉब्ली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जहां पे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की जरूरत होती थी। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड। अब यहां पे एक चीज और देखिए, यहां कैनाल की बात आ गई। इसका मतलब है कि हड़प्पन्स को कैनाल कंस्ट्रक्शन की का ज्ञान था। दे वर नोन टू द कैनाल कंस्ट्रक्शन। सो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शर्तुघई इन अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान मतलब आउट ऑफ इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान में शर्तुघई में हम ये देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है अपना कैनाल को लेकर एक एविडेंस देता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो हमने लिखा हुआ है यहां पे विच साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर गिव्स एविडेंस ऑफ कैनाल्स। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सारे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं ये जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूं ये क्वेश्चंस जो हैं हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपके ये फर्स्ट बुक से रिलेटेड है। आपको लगेगा सर मैं तो कॉम्पिटिटिव की बात नहीं कर रहा हूं और मैं तो जो है स्कूल लेवल की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप स्कूल लेवल में रहते रहते अगर इन सब चीज़ों की तैयारी कर लेंगे, जो कि कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवेज में पूछा जाता है, पीसीएस के एग्जाम से पूछा जाता है और कई यूपीएससी के एग्जाम से पूछा जाता है, तो आपको यह पता चलेगा कि भाई ये तो मैं पहले से तैयार करके बैठ गया हूं। इसका मतलब मैं इन सब कॉम्पिटिशन्स में को बीट कर सकता हूं। इन सारे कॉम्पिटिशन्स के ऊपर जो है मैं जो हावी हो सकता हूं, मैं एग्जाम निकाल सकता हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यू नीड टू पे अटेंशन दीज क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट एट अ लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। आगे बढ़ते हैं। कहता है ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शोरतगोई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। इट इज पॉसिबल दैट द एंशिएंट कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। हो सकता है एक के ऊपर एक सिल्ट लगने की वजह से वो कैनाल्स पूरी तरीके से भर गए, ठीक है, और उन्होंने जो है पानी वो कैनाल भर गए और हो सकता है कि पानी निकल के बाहर आ गया और दूसरी तरफ बहने लगा।
इट इज ऑल्सो लाइकली दैट द वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, और यह भी माना जाता है कि जो पानी वेल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पे इरिगेशन के लिए फैसिलिटी क्रिएट की गई है कैनाल्स की, यहाँ पे इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज की गई है वेल्स की। बिसाइड्स वाटर रिजर्वायर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात में हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे तीसरी चीज एक और आ गई, वो है वाटर रिजर्वायर है। और वाटर रिजर्वायर का एविडेंस हमें कहां से मिलता है? धोलावीरा गुजरात से मिलता है। तो हमने फिर यहां एक क्वेश्चन बना दिया, नेम द साइट ऑफ आईवीसी इंदस वैली सिविलाइजेशन दैट गिव्स द एविडेंस ऑफ रिजर्वायर। तो यहां पे ये क्या हो गया? धोलावीरा गुजरात। तो इस तरीके से हम यहां पे इस सेकंड टॉपिक को खत्म करते हैं। तो यहां पे ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको ध्यान से सुनना है, जानना है, और कोशिश करनी है आपको कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स माई रिक्वेस्ट दैट आई वांट यू पीपल टू हेल्प मी अराउंड टू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर हो सके तो ज़रूर कमेंट करें अगर इसमें कोई कमी है, या फिर आपको कोई सवाल अगर पूछना है तो हम उस सवाल का जवाब को ज़रूर देना पसंद करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।